Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स की। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द फॉलोइंग स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स। पहला है अप्रूव्ड 8,500 करोड़ रुपीज स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। सेकेंड, पास द रेजोल्यूशन ऑन प्रण प्रतिष्ठा एट श्री राम टेम्पल इन अयोध्या। देन थर्ड, अप्रूव्ड अ साइनिंग एमओयू बिटवीन इंडिया और ओमान के बीच में एक एमओयू हुआ ताकि आईटी के फील्ड में कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने नॉमिनेट किया कितने फोर्ट्स को ऑफ मराठास फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो अभी 12 फोर्ट्स को मराठा के अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो एक मार्क करके चलेंगे। एंड ये किस कैटेगरी के अंडर इनको लिस्ट किया गया है? अंडर द कैटेगरी कल्चरल साइट्स, राइट। एंड ये जो फोर्ट हैं ये शोकेस करते हैं मराठा रूल के टाइम पे उनकी जो मिलिट्री पावर थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, उसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं वो 12 फोर्ट्स। आप एक बार इनमें से गो थ्रू हो जाइए वीडियो को पॉज करके। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? ऑड्रे ऑजले। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस, फ्रांस में। एंड इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पर आते हैं, हाउ मैनी स्नो लेपर्ड्स आर देयर इन इंडिया इन जैन 2024। अभी इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक सर्वे हुआ जो था आपका SPAI, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, राइट। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का सर्वे था जो इंडिया में पहली बार हुआ। एंड इस सर्वे से पता लगा कि इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स हैं, राइट। ऑप्शन ये तो 12 है, नहीं, ऑप्शन 5 लिख लेते हैं, 718, राइट। 718 स्नो लेपर्ड्स हैं इंडिया में। एंड ये जो डाटा कंडक्ट कराया गया ना, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया का, ये सर्वे 2019 से लेकर 2023 तक ये कंडक्ट कराया गया, और इसके दौरान पता लगा हमें कि टोटल ऑफ 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। भूपेंद्र यादव जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, इन्होंने ये डाटा रिलीज किया। ये स्टेटस रिलीज किया ऑफ द रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग नेशनल बोर्ड फॉर विलेज मीटिंग, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया कंप्यूटराइजेशन ऑफ ARDBs एंड RCS। ARDB क्या है?
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। इन दोनों को कंप्यूटराइज करने की बात की गई यहाँ पे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, राइट। देन आप कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कर पाएंगे एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यहाँ पे यूज कर पाएंगे एंड इससे आपका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना उसमें काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो ARDBs एंड RCs को यहाँ पे कंप्यूटराइज किया जाएगा एंड ARBDs की बात करें तो 1851 ब्रांचेस में अक्रॉस 13 स्टेट्स यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट, विच रिवर वॉज डाइवर्टेड फॉर 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 805 वाट का एक रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको बनाने के लिए एक अभी रिवर को डाइवर्ट किया गया थोड़ा। उस रिवर का नाम क्या रहेगा, चेनाब रिवर को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया। और ये कहाँ पे डाइवर्ट किया गया, इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस रिवर को, चेनाब को यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया। फिर ये जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहेगा ये कब से ऑपरेशनल हो जाएगा, कमीशन कब हो जाएगा, तो मई 2026 तक इसको यहाँ पे डिलीवर करने की बात की गई, इसको कमीशन करने की बात की गई। मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं चेनाब रिवर, इसको डाइवर्ट किया गया फॉर 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहेगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा और इसको मई 2026 तक कमीशन करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिलीवर किया इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन टू NMDC। NMDC क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो ड्रोन है ना ये आपका मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के काम आएगा। ये ड्रोन की कंपनी का नाम क्या रहेगा, मरूथ ड्रोन ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये एक हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी रहेगी, ड्रोन कंपनी रहेगी। इन्होंने अभी अपना एक ड्रोन जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन रहेगा, उसका नाम भी याद रखेंगे, वो मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन का नाम रहेगा ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल X8, ये ड्रोन का नाम रहेगा। इस ड्रोन को अभी डिलीवर किया गया टू NMDC को यहाँ पे डिलीवर किया गया फॉर वेरियस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। ये जो आपका ड्रोन है इसमें एडवांस सेंसर रहेंगे जैसे मैग्नेटोमीटर, हाइपर स्पेक्ट्रल मीटर, लाइडार मीटर, ये सारे यहाँ पे इसमें इनबिल्ट रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हैदरा तेलंगाना बेस्ड मरूथ ड्रोन ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना कस्टमाइज्ड ऑक्टा क्वाड कोएक्सियल X8 ड्रोन, राइट, ये नेम रहेगा इस ड्रोन का, इसको डिलीवर किया टू NMDC। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और इसमें जो इंडिया की रैंक रहेगी 2023 के लिए वो कितनी रहेगी, 93। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंक 2022 में कितनी थी, 85। तो हम कह सकते हैं इंडिया में जो करप्शन का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2023 में हमें करप्शन का इंडेक्स ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है, इंडिया की रैंक रहेगी 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एंड यहीं पर एक चीज़ और याद रखेंगे, टॉप पर कौन सी रही, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है हमारी कंट्री डेनमार्क, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के CEO कौन रहेंगे, वो हैं डैनियल एरिक्सन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक रही 93 इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डेनमार्क ने टॉप किया एंड ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द GDP फॉरकास्ट ऑफ इंडिया बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 2024। तो देखो 2023 की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया, टू ग्रो बाय 6.7%, राइट। वहीं पे अगर मैं 2024 की बात करूं तो इंडिया का एक्सपेक्टेड है 6.5% से इंडिया ग्रो करेगा। इवन 2025 में भी इंडिया 6.5% से ग्रो करने की यहाँ पे बात की गई अकॉर्डिंग टू IMF। इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल फैक्टर्स देखें, ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो हम देख रहे हैं वॉर लाइक सिचुएशन है, रिसेशन की बात कर रही है, तो वर्ल्ड जो ग्रो कर रहा है अभी 3.1% से ग्रो कर रहा है 2023 में एंड 2024 में, ये डाटा रिलीज किया गया है। और अगर 2025 की मैं बात करूं तो वर्ल्ड 3.2% से यहां पे ग्रो करेगा, ग्लोबल ग्रोथ जो रहेगी। नेक्स्ट, गेल ने अभी एक LNG परचेज अग्रीमेंट साइन किया है ADNOC के साथ। ADNOC क्या है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, राइट। एंड गेल यहाँ पे LNG परचेज करेगा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से
करेक्ट। एंड अंडर दिस अग्रीमेंट गेल ये परचेज करेगा 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ LNG गैस पर ईयर फ्रॉम दिस ADNOC गैस कंपनी। ये आपका जो एग्रीमेंट है विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2026 एंड 10 साल के लिए ये वैलिड रहेगा ये अग्रीमेंट। एंड दिस इज इन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियाज एफर्ट टू एनहेंस द शेयर ऑफ नेचुरल गैस ऑफ एनर्जी सेक्टर टू 15% तक इसको ले जाने के लिए। ठीक है, तो गेल ने एक LNG परचेज एग्रीमेंट साइन किया अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने अभी 4 मेंबर अपॉइंट किए टू 16th फाइनेंस कमीशन। ये 4 मेंबर कौन रहेंगे? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाधक्स्या एंड सौम्या कांति घोष। ये वो 4 इंडिविजुअल्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया टू द 16th फाइनेंस कमीशन। इनमें से 3 परमानेंट रहेंगे एंड 1 पार्ट टाइम मेंबर रहेगा। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अनिल कुमार लाहौटी। इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ TRAI। TRAI के नए चेयरमैन बने हैं, 3 साल के लिए बने हैं। एंड याद रखेंगे ये 9th चेयरमैन बने हैं ऑफ TRAI। TRAI क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे PD वेघेला को टू बी द न्यू 9th चेयरमैन ऑफ TRAI। राइट, फिर यहीं पे याद रखेंगे अनिल कुमार लाहौटी ये IR इंडियन रेलवे सर्विस इंजीनियर है ऑफ 1984 बैच एंड ये 3rd नॉन IAS बने जो कि यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं TRAI के सिंस 1997। TRAI की बात करें तो अब चेयरमैन कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। सिमिलरली नेक्स्ट याद रखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अपॉइंटमेंट हुई है फॉर्मर RBI डेप्टी गवर्नर की HR खान की एज देयर पार्ट टाइम चेयरमैन। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं वो कौन है? वो है HR खान। HR खान फॉर्मर RBI डेप्टी गवर्नर हैं, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। इनको भी अपॉइंट किया गया HR खान को एज देयर न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ACC ने अप्रूव किया DFS प्रपोजल टू ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। राइट, तो जस्ट गो थ्रू इट। फिर अगर मैं बात करूं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर क्या रहेगा? जयपुर राजस्थान में, एंड 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, आप CCI अप्रूवल्स देखिए कुछ ऑफ जनवरी 30। पहला है सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ API होल्डिंग्स बाय गोल्डमैन सैक्स स्कीम्स। देन सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ API होल्डिंग्स लिमिटेड बाय मैकरिची। देन तीसरा आ जाता है अप्रूवल्स ऑफ नेस्पर्स वेंचर्स टू इन्वेस्ट इन API। चौथा सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ API होल्डिंग लिमिटेड बाय CDPQ। CCI की बात करें, चेयरपर्सन रवनीत कौर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिश किया गया 2003 में। नेक्स्ट आ जाता है फिर ऑब्यूटरी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हरमोहन धवन, इनका रिसेंटली पास निधन हो गया। हरमोहन धवन ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम चंडीगढ़। इनका 83 की एज में निधन हो गया इन मोहाली, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेज, टेक अ नोट ऑफ दिस। पूछा जा सकता है शहीद दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है या फिर मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड टू कमेमोरेट द लाइव्स ऑफ द पीपल जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को इन द लाइन ऑफ ड्यूटी टू द नेशन। राइट, तो शहीद दिवस, ऑल्सो शहीद दिवस याद रखेंगे महात्मा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है, जिनको हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं महात्मा गांधी जी को, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 30 जनवरी को। एंड इस साल 2024 में हमने उनकी 76th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 2024 को। तो मार्टर्स डे बोले, सर्वोदय डे बोले या फिर शहीद दिवस बोले, 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उड़ीसा के द्वारा भी एक स्कीम लॉन्च की गई है, लभा स्कीम। लभा स्कीम अंडर बेसिकली क्या है? MSP प्रोवाइड करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराया जाएगा टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी आपका इंडिविजुअल यहाँ पे स्कीम के अंडर ट्राइबल कम्युनिटी से जो भी व्यक्ति कलेक्ट करके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, इस माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यहाँ पर लाएगा, उनको यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या होगा कि जो आपके पहले क्या होता था, अब तो सरकार ले लेगी, लेकिन इससे पहले क्या होता था, मिडलमैन इस पर बहुत कम प्राइस पे उनसे इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बाय कर लेते थे, बहुत ही कम प्रोड्यूस पैसे देकर, जिससे क्या होता था जो राइट अमाउंट मिलना चाहिए था
इनको वो नहीं मिलता था। तो अब लाभास स्कीम के अंडर यहाँ पे राइट प्राइस मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अंडर दिस स्कीम जो प्राइमरी कलेक्टर्स होंगे ट्राइबल कम्युनिटी से, वो अपने मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो उन्होंने कलेक्ट किया है फ्रॉम प्रोक्योरमेंट सेंटर से, वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड ये जो सेंटर्स होंगे इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे मैनेज करेगा, राइट। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेटअप किया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, और इसके लिए ये लाभा स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पे। कैबिनेट अप्रूवल हमने देख ही लिया। इंडिया ने नॉमिनेट किया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को, एंड 12 फोर्ट्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। भूपेंद्र यादव ने रिलीज की एक रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने लॉन्च किया एक कंप्यूटराइजेशन ऑफ ARDBs एंड RCS ऑफिसर्स। चेनाब रिवर इसको डाइवर्ट किया जाएगा फॉर 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होगा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। देन मरूद ड्रोन्स इन्होंने डिलीवर किया इंडिया का पहला मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन टू NMDC। इंडिया की रैंक रही 93rd इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपग्रेड किया इंडिया की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.5% फॉर 2024। देन गेल ने साइन किया LNG परचेज अग्रीमेंट विद ADNOC। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने अपॉइंट किए 4 मेंबर्स टू 16th फाइनेंस कमीशन। अनिल कुमार लाहौटिन को अपॉइंट किया गया एज द न्यू TRAI चेयरमैन। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया फॉर्मर RBI डेप्टी गवर्नर HR खान को एज देयर पार्ट टाइम चेयरमैन। CCI अप्रूवल्स हमने देख लिए। देन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हरमोहन धवन, इनका निधन हो गया। शहीद दिवस मार्टर्स डे बोले तो 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ओडिशा ने लॉन्च किया लाभा स्कीम को, जो कि एक 100% स्टेट फंडेड MSP स्कीम रहेगी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेंगे। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो कौन रहेंगे, KS मूर्ति, कोपू सदाशिव मूर्ति, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने भेल के। करेक्ट। ये किनको सक्सीड करेंगे, नालीन सिंघल को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड नालीन सिंघल इस पोजीशन में सिंस जुलाई 2019 से थे। एंड कोपू सदाशिव मूर्ति इस पोजीशन पे कब तक रहेंगे, 28 फरवरी तक 2027 में इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं RBI के रिसेंटली, वो है मनोरंजन मिश्रा। मार्क करके चलेंगे, मनोरंजन मिश्रा। एंड मनोरंजन मिश्रा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं RBI के, राइट। ये 3 डिपार्टमेंट संभालेंगे, एनफोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन। Which bank or organization has recently signed a loan of $100 million with the Government of India for India Tripura Urban and Tourism Development Project? Which of the following organizations signed this loan? It was by Asian Development Bank, right? They signed a loan with Government of India for the Tripura state's urban and tourism development project to increase tourism in Tripura. This was done. Correct? Take a note of this, right? Next, and what was the loan for amount? It was $100 million. Next, if I ask you, tell me who has been recently appointed as the BSE chairman. BSE chairman, Pramod Agrawal, right? SEBI has approved Pramod Agrawal as the new chairman of BSE. Next, which organization or ministry has recently collaborated with Asian Development Bank to launch an initiative that facilitates climate action in India's agriculture, natural resource and rural development sector? Which is that ministry or organization? It is NABARD. Correct? NABARD, and along with Asian Development Bank, they have launched an initiative to facilitate these ANR sector, that is agriculture, natural resource and rural development sector. Good Governance Day was observed across India on 25th of December to mark the birth anniversary of which of the following Prime Ministers of India? तो कौन है वो? अटल बिहारी वाजपेयी,
राइट। तो गुड गवर्नेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया ऑन 25 ऑफ दिसंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि 10वें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी मेमोरी में इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। इस बार कौन सा गुड गवर्नेंस डे था याद रखेंगे, 10th प्राइम मिनिस्टर थे, 10th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो इस बार याद रखेंगे ऐसे ही कि ये 10वां गुड गवर्नेंस डे था एंड इनकी 99th बर्थ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ रिसेंटली मेड द फर्स्ट एवर पेमेंट इन रुपीज़ फॉर क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम डैश कंट्री। तो इंडिया ने अभी रुपीज़ में यहाँ पे पेमेंट करी है क्रूड ऑयल की। किस कंट्री को पेमेंट की और किस कंट्री से बाय किया क्रूड ऑयल? यूएई से यहाँ पे इंडिया ने बाय किया और जो पेमेंट करी रुपीज़ में की फॉर क्रूड ऑयल। नेक्स्ट, नेम द इंडिया बेस्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जो अभी रिसेंटली जिसने डिटेक्ट किया ब्राइट सब सेकेंड एक्सरे बर्स्ट फ्रॉम दिस मैग्नेटार। मैग्नेटार क्या होता है? मैग्नेटार एक वो न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो बहुत ही हाई होती है। तो इंडिया की कौन सी स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जिन्होंने डिटेक्ट किया इन ब्राइट सब सेकेंड एक्सरे बर्स्ट को फ्रॉम दिस मैग्नेटार? तो उसका नाम रहेगा एस्ट्रोसैट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया मैडटेक मित्रा को। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ताकि इंप्रूव किया जा सके एंड एम्पावर किया जा सके हमारे मेडटेक सेक्टर को। एंड जो हम हेविली डिपेंडेंट रहते हैं इंपोर्ट्स पर फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसको हम छोड़कर हम अपने इंडिया में ही मेक इन इंडिया के अंडर मेडटेक से रिलेटेड मेडिकल टेक्नोलॉजी इन सबको यहाँ पे इंडिया में ही डेवलप करें। इसके लिए पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसीज हैव इनिशिएटेड दिस मेडटेक मित्रा। तो नीति आयोग बिल्कुल सही, आईसीएमआर बिल्कुल सही एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव को आगे ले जाने की बात की। नेक्स्ट, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई कॉइन स्विच के द्वारा। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि या फिर इंडिया की इनकी जो रिपोर्ट आई थी ना वो थी इंडिया क्रिप्टो पोर्टफोलियो। इसमें बताया गया कि वो कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है इन इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो अडॉप्शन, या जिसने टॉप किया इन इंडियाज क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। तो वो रहेगी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमें क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट देखने को मिली 8.8% की। इसके बाद आ जाती है फिर पुणे में सबसे ज़्यादा देखने को मिली 3.8 इसके बाद आ जाती है हैदराबाद। करेक्ट, आई रिपीट, आई करेक्ट माई सेल्फ, फिर से बता रहा हूँ, न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमें क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट देखने को मिली 8.8% की। इसके बाद बेंगलोर में हमें देखने को मिली 8.3% की, और इसके बाद हमें देखने को मिली मुंबई में 5.2% की ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये पुणे और ये रहने देंगे, बेंगलोर और मुंबई याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन दिसंबर IRDAI इनके द्वारा सेट किया गया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कवर करता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को। पूछा जा रहा है उसका नाम क्या रहेगा। तो जो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है IRDAI के द्वारा लॉन्च किया गया, नाम है उसका बीमा विस्तार। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च किया गया था इन द फिस्कल ईयर ऑफ 25, ये लॉन्च किया जाएगा मतलब अभी। करेक्ट, बीमा विस्तार। नेक्स्ट, आरबीआई ने ग्रांट किया 1 साल का एक्सटेंशन फॉर द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप बिटवीन बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड डैश बैंक। एक्सपेक्टेड था कि 2 साल की ये एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड आरबीएल बैंक का जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उसको भी 1 साल का ही एक्सटेंशन मिला। राइट, 2 साल का नहीं मिला। किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट नेम्ड नारी शक्ति सेविंग अकाउंट? ये वीमेंस के लिए लॉन्च किया गया है। 18+ वीमेन होनी चाहिए, जो सेल्फ अर्निंग वीमेंस होती हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। करेक्ट, किस बैंक के द्वारा? नाम रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स वीमेंस के लिए बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस एरोस्पेस कंपनी ने या स्पेस कंपनी ने भी रिसेंटली लॉन्च किया Zhuke 2 Yao 3, जो कि वर्ल्ड का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल रहेगा जिसने 3 सैटेलाइट स्पेस में ले जाई गई। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है लैंडस्केप चाइना। राइट, इनके द्वारा ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया Zhuke 2 Yao 3, जो कि वर्ल्ड की पहली लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल रहेगा। इसी के साथ साथ एक और कंपनी का नाम याद रखेंगे, वो है iSpace। iSpace वो कंपनी है जिन्होंने चाइना का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट किया। चाइनाज फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट करा। नेक्स्ट,
When was the UN International Mountains Day observed across the globe with the theme Restoring Mountain Ecosystem? तो किस या फिर पूछा जाए कब ऑब्जर्व किया जाता है यूएन इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, जिसकी थीम रहेगी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। तो हम याद रखेंगे 11 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 2003 में। किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया खेलो इंडिया पैरा गेम्स के साथ एंड दिव्यांगन काला मेला के साथ, ताकि जो भी आपके डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको हेल्प की जा सके, उनको अकोमोडेशन दी जा सके, उनको हेल्प किया जा सके टू बी अ बेटर प्लेयर एंड ग्रो इन लाइफ, राइट। तो डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्प कर रही है कौन सी कंपनी? ओयो। इन्होंने काफ़ी सारी एनजीओ के साथ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी टाई अप किया है, ताकि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, हम उनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, आर टेक्स्ट बुक फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? तो ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मार्क करके चलेंगे इसको। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, जो कि है द ई सवर्णा कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? तो ये जो ई सवर्णा कार्ड है, राइट, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंडसइंड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, मार्क करके चलेंगे। एंड ये एक आपका कमर्शियल क्रेडिट कार्ड रहेगा। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड देयर न्यू सूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंप्रूव देयर बैंकिंग सर्विसेज। अपने बैंक की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो कस्टमर सर्विसेज दी जाती हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए नई सर्विसेज लॉन्च की गई। किस बैंक के द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ये नई सर्विसेज, डिजिटल सर्विस लॉन्च की गई। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया $165 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट विद वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन रेजिडेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल एरियाज? तो सबसे पहले याद रखेंगे ये एसबीआई रहेगा। पहला तो एसबीआई ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एलओसी साइन किया लाइन ऑफ क्रेडिट, कितना रहेगा? $165 मिलियन का। दूसरा याद रखेंगे इन्होंने एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, और ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट रहेगा आपका, ये है 200 मिलियन यूरो का, ठीक है। और ये जो था ये आपका बेसिकली क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए था, क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दो यहाँ पे आपको लाइन ऑफ क्रेडिट याद रखने हैं, एक वर्ल्ड बैंक के साथ, एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, एसबीआई के। नेक्स्ट, नेम द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसको रिसेंटली कमीशन किया गया बाय इंडियन नेवी इन मुंबई महाराष्ट्र। क्या नाम रहेगा उसका? आईएनएस इम्फाल। इसको ही हम बोलते हैं यार्ड 12706। इसको डेवलप किसके या फिर बोलें बिल्ट बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, राइट। एंड इसको कमीशन कहाँ किया गया? एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। एंड राजनाथ सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उनकी प्रेजेंस में इनको यहाँ पे कमीशन किया गया। देन ये थर्ड ऑफ द फोर्थ प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर हैं, जो कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किए गए हैं एंड बिल्ड किए गए हैं मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। Who was recently sworn in as the 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? मिजोरम के छठे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो है लाल दुहोमा। करेक्ट, 74 साल के हैं एंड ये लीडर हैं जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के, एंड ये छठे चीफ मिनिस्टर बने हैं मिजोरम के। नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है जिन्होंने अल्फा वेल्थ प्लान अभी लॉन्च किया टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज? तो क्या नाम रहेगा? वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफर करता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को टू मॉडिफाई प्रीमियम्स, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स, पॉलिसी ड्यूरेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड? तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट किए गए? वो हैं डोनाल्ड टस्क, राइट। ये अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कहाँ के? पोलैंड के। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअपॉइंटेड जेराल्डो मार्टिन्स एज द प्राइम मिनिस्टर? तो गिनिया बिसाऊ के अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किए गए हैं जेराल्डो मार्टिन्स एज द प्राइम मिनिस्टर। वीर बाल दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड एडिशन रहेगा वीर बाल दिवस का, जो हम 2023 में ऑब्जर्व कर रहे हैं। यह ऑब्जर्व किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इन द ड्यूरिंग टू और या फिर टू रिमेंबर और टू, ये वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ऑनर करने के लिए जो थर्ड एंड फोर्थ सन थे ऑफ आर 10th एंड लास्ट सिख गुरु गोबिंद सिंह, उनके थर्ड एंड फोर्थ बच्चे के सेक्रीफाइस को ऑनर किया जाता है यहाँ पे।
थर्ड सन कौन था, वो थे साहिबजादा जोरावर सिंह, एंड फोर्थ कौन थे, साहिबजादा फतेह सिंह। करेक्ट। इनके ऑनर को, इनके ट्रिब्यूट को, इनका जो सेक्रीफाइस था उनको ऑनर करने के लिए हम ये वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार 2022 में ऑब्जर्व किया गया था और दूसरा एडिशन इसका 2023 में ऑब्जर्व किया गया है, 26 दिसंबर को। ICC इंट्रोड्यूस्ड अ स्टॉप क्लॉक इन मेंस ODI एंड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये स्टॉप क्लॉक क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी कि एक नया सिस्टम इम्पोज किया गया है जिसमें 5 रन की यहाँ पे पेनल्टी लगेगी बॉलिंग टीम को अगर वो 3 बार किसी भी मैच की इनिंग्स में 60 सेकंड से ज़्यादा ले लेती है 2 ओवर्स के बीच में, राइट। मतलब एक ओवर ख़त्म हुआ तो दूसरा ओवर जब आएगा उसको 60 सेकंड के अंदर वो दूसरा ओवर स्टार्ट करना है। अगर वो दूसरा ओवर स्टार्ट नहीं होता है 60 सेकंड के अंदर तो 5 रन की यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी इन पे। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी अपना 7वां ATP फाइनल टाइटल को जीत लिया है, राइट। इन्होंने जेनिक सिनर को, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, इनको फाइनल्स में हराया टू विन हिज 7th ATP टाइटल। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अभी न्यूज़ में था, ये किस रिवर पे बन रहा है, जल्दी बता दो। नेक्स्ट, विच 3 कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तीसरा, दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज़, ये किस रिवर पे, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। चौथा, INS सुमित्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ काइंड ऑफ वेसल, व्हाट काइंड ऑफ वेसल। और पांचवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कोएक्सिला इफेक्टर F प्रोटीन। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से एंड इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में। मैं चाहता हूँ आप सभी जगह इन करंट अफेयर्स की वीडियोस को शेयर करा करो डेली बेसिस पे एंड लेट देम नो अबाउट द इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहां पर हम डेली बेसिस पे काफ़ी सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। एक तरीके से न्यूज़पेपर हमारा यहाँ पे डिस्कस हो जाता है और आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है डेली बेसिस पे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.